Good evening, everybody, and a very warm welcome. Sunday की चाय और आपके साथ. That's like a beautiful routine that I have. कोई मुझे कह रहा था आपके कप नहीं नजर आया पिछली दफा. मेरा कप थोड़ी देर में आता है. तो संदीप जी, हम usually एक कहानी से शुरू करते हैं, and I'll start like that. And once we come to the little end of the story, I'm going to introduce you to our audience, right? So you remember Pan, and we start with this little figure of Pan and his mum. So today, Pan, Mum, and friends, they all live in this big building behind me. All right. So Pan the panda lived in a building so tall. Suddenly, one day, Mom said, "Sorry, Pan, you can't go out at all." So Pan called his friends and asked them if their mom had told them the same. Now, how would they plan and play the evening game? So some friends began to cry. But Pan said, "Just don't worry. Wait, let's try." So every day they would come to the balcony and they would make a plan. One day they made some paper planes and they flew them here and there. They wrote messages and the messages reached across to the balconies. And then they came with their water guns and then they had some fun. Then what they did was they made some beautiful paintings and showed them to everyone. And that's how they all had fun. And Pan said, "Just don't cry. We are all going to try." And that's how they built. And one day, Mummy got them a ball of thread. She came and she got them a ball of thread and said that, "Okay, we are going to roll this ball around. Wherever it goes, a song can be found. Whatever you have learned, you all will sing along, and this made thread will become your favorite song." So every day the thread would happily go along. It would keep rolling and it would sing a beautiful song. They would say, "Oh my God, we have to wear a mask. It's not anymore a task." And the thread would go to the next friend's house. And then they would say, "Oh, on time, we have to go to the bed." And Aereo the chariot, the thread just rolled about. So Aereo the chariot, the thread just rolled about. And it just made everybody happy. Wherever the thread would go, everybody would be very happy. क्योंकि बस 2 दिन पहले गांधी जयंती थी और हम सब कह रहे थे कि हम स्वच्छ रहना है. तो ये जो धागा था, ये धागा धीरे चला भाई, धीरे चला, देखो आगे बढ़ा, देखो आगे बढ़ा, देखो धागा चला, देखो धागा चला. अब ये आ गया आपके शहर में. जब आ गया तो धागे ने कहा, "मैं देखो जंगल से आया था, वहां पे इतनी हरियाली मैंने पाई थी, लेकिन देखो तुम्हारा शहर कितना गंदा है." तो सबने कहा कि धागा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम आगे बढ़ते चले जाओ, हम भी सब कुछ साफ रखेंगे और खूब मुस्काएंगे. तो धागा धीरे चला, देखो आगे बढ़ा, देखो धागा चला, देखो धागा चला, और सबने खूब मुस्काया. तो आज हम एक बहुत स्पेशल गेस्ट से मिलने वाले हैं, जो ना ही खुद मुस्कुराते हैं, लेकिन हमें मुस्कुराने के लिए बहुत सारे रीजन देंगे, बहुत सारी बातें सुनाएंगे और हम उनके साथ बहुत बहुत सारी बातें करेंगे. So a very warm welcome to Dr. संदीप अत्रे. लेकिन मैं आपको संदीप जी बुलाऊंगी क्योंकि मैं उस नजरिए से आपको देखती हूँ. So a very warm welcome to our show. Thank you so much, Sonia ji. An absolute pleasure being here. I, usually have to have this big description of my speakers, but मैं हर वक्त कहती हूँ कि जो भी हमारे speakers आते हैं, they have touched the way I see life somewhere or the other. And I think that's my best description of a person, is that whatever your qualifications are, you have these, you run an organization that takes care of social emotional development, you run shows, but what really reached to me is that you have a soul, and you do it so beautifully. So there were 2 words that I have come across in the last few sessions of mine. One is what you say is socialigence, to have social intelligence. And another beautiful word that Jyoti Pandey had given us was happitude, to have a happy attitude. These 2 words, I think, are going to just stay with me for a very long time. And and surprisingly, as we grew, Sandeep ji, each thing has got connected with the other.
जैसे मैं आपसे बात कर रही थी तो एक योगा का सेशन कनेक्ट हो गया. लास्ट वीक वी हैड अ ब्यूटीफुल सेशन वेयर वी डिड साइंस एंड हमारे छोटे से नारियल के शेल में हमारे छोटे से प्लांट्स उग गए. तो Wow. खुशी, so इतनी छोटी छोटी चीजें, and that's exactly what I've been trying to tell myself. I've been a teacher for 30 years now, a facilitator. लेकिन मुझे कभी भी स्ट्रेस, जब लोग कहते हैं बच्चों को स्ट्रेस हो गया, ये कभी समझ में नहीं आया, actually speaking. So I feel that's the reason why. And if you notice at the back, every sixth or seventh session, I've had parents asking me to help them with this aspect of life. So that was one reason why I thought that I must request you to come on board. And thank you so much for that. Thank you so much. Perspective on this. छोटी छोटी चीजें जिंदगी की, how important are they? I think ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो मुझे लगता है मिलकर एक बहुत इम्पोर्टेंट जिंदगी क्रिएट करती हैं. आज इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछो कि मेरी बचपन की सबसे खूबसूरत याद क्या है, तो मुझे लगता है कि जाके मम्मी की गोद में जब आप सोते हैं, तो मैं जब मम्मी की गोद में सोता था तो मम्मी का जो पसीना होता था और वो जो जो साड़ी का जो साड़ी जिस वॉशिंग पाउडर में धुली होती थी, उन दोनों का जो एक जॉइंट खुशबू थी, वो आज भी मुझे सबसे ज्यादा याद आती है. अब कोई मुझसे बोले कि भाई बचपन की यादों में तुम्हारा ये खुशबू कहाँ से आ गई, तो मैं यही कहूंगा कि शायद बचपन की यादें इस तरह की छोटी छोटी चीजों से ही बनी होती हैं. और आज आप मुझसे कह रही हैं कि आज आपने जो भी कुछ क्रिएट किया वो सब एक दूसरे से जुड़ा है. मुझे लगता है उसी तरह से हमारी जिंदगी के सारे छोटी छोटी चीजें जब तक एक दूसरे से जुड़ती रहती हैं, तब तक हमको एक सेंस ऑफ कोहेरेंट नैरेटिव मिलता है लाइफ में. अगर वो सेंस ऑफ कोहेरेंट नैरेटिव रहता है तो हमारी जिंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा खूबसूरत बनी रहती है. तो मुझे खुशी है कि जिस तरह से आज आप अपनी स्क्वायर पांडा की जर्नी को उन सारी छोटी छोटी चीजों के कनेक्शन में देख पाती हैं, उसी तरह से अगर हम अपनी जिंदगी को देख पाएंगे तो मुझे लगता है इंसान जो है वो खुश भी रहेगा और कामयाब भी. So smaller things, it's a worry. So there's this beautiful saying that I heard from Pradeep ji in one of his shows, is that said that mental health is less understood and more hyped. Exactly. मुझे वो बिल्कुल समझ में आया कि हम, what is our version? Suppose we say social emotional intelligence. What does it mean? Is, so many of us will just say this is okay and this is not. So if you can just tell us what it should mean to just everybody. इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ब्रॉड वे में कहूँ तो वो कहलाएगा द साइंस ऑफ लिविंग. अब अगर मैं उसे और थोड़ा नैरो जाऊं सोनिया जी, तो वो होगा द साइंस ऑफ मैनेजिंग सेल्फ एंड कनेक्टिंग विद अदर्स. और उसको अगर मैं और नैरो करूं और उसको 3 स्किल्स के एक कॉम्बिनेशन की तरह मानूं, तो वो 3 स्किल्स होती हैं अवेयरनेस, अट्यूनमेंट और अडेप्टेबिलिटी. अवेयरनेस यानी मेरे अंदर क्या चल रहा है, अट्यूनमेंट मतलब सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, और अडेप्टेबिलिटी मतलब अब जो हमारे गोल्स हैं इंटरेक्शन के, उसमें मेरा बिहेवियर अब किस तरह से होना चाहिए, उसको ढालने की क्षमता. तो ये जो 3 अवेयरनेस, अट्यूनमेंट और अडेप्टेबिलिटी, इन 3 स्किल्स को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको जो है वो एक स्किल सेट मिलेगा, वो है इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस. दैट्स व्हाट. This is like perfect. Now I'll have to go back and make notes on this. Sandeep ji, I'll request you to shift back just a little. जी. This is perfect. Now we can So like what he says, a balance, finally creating a beautiful balance of life. Now, about 2 years back, we got a project from Germany. A friend of mine, Mansa, she had also come on the show. And the topic was educating adolescents around the globe. So I don't work with adolescents, I work with early years, and Mansa works with adolescents. When we were writing the chapter, all the problems that we brought out, this was supposed to be an international publication, so we were very careful. But each time she brought up a point, I said, my God, it stems from early years. Yes. So I just thought I must ask you that as children grow, into adolescence, what does this 6 years, 7 years of their life, their family, their parents do for them for life? Does it do anything at all? People say, क्या फर्क पड़ता है? I say कि बहुत फर्क पड़ता है. So we'll take your perspective on that. सोना जी, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे जो शुरुआती बरस होते हैं
ये जो है ये हमारी जिंदगी का जो है वो साइकोलॉजी में एक बड़ी खूबसूरत टर्म है, स्पेशली सीबीटी में, और वो है स्कीमाज। स्कीमाज मतलब पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, वो तैयार करते हैं और हमारी जिंदगी के पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस जो है वो तैयार करते हैं। तो हम जब बड़े होते हैं, स्पेशली एडोलेसेंस में अगर आप देखें, तो हमारे जो बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस बन जाते हैं, और वो पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस जो हैं वो तय करते हैं कि हम लोग अपने आप के बारे में और अपने आसपास के बारे में क्या विचार रखते हैं। क्योंकि छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फाइनली जब आप बड़े होते हैं तो आपके अंदर जो, वो एक बड़ी खूबसूरत लाइन है ना एक फिल्मी सॉन्ग की, कि आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी पर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो मुझे लगता है कि जब बच्चा छोटा होता है तब तो वो उन सदाओं को बहुत ध्यान से सुनता है, और चूंकि वो ज्यादा ध्यान से सुनता है इसलिए वो उसका और पीछा करती है, और जब वो बड़ा होता है तो उसको हमेशा याद रहती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स को, अब आपके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलूं, तो पेरेंट्स को दरअसल बहुत इंपॉर्टेंटली ये याद रखना चाहिए कि जितने भी एक्सपीरियंसेस उसके अर्ली चाइल्डहुड में होंगे बच्चे के, वो पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस तैयार होंगे। इसीलिए पहला, रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस जो हैं बचपन की, वो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो पहली बात है रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस। छोटे से एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी जो हैं वो बड़े गुस्सैल थे, है ना। अब मैं ये बोलता हूँ कि आप किसी भी दिन अगर इसको स्टैटिस्टिकली चेक करने जाएंगे तो पिताजी कितने भी गुस्सैल हो, महीने में मेरा मानना है एक आध दो बार ही गुस्सा होते होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। अब अगर महीने में 2 बार गुस्सा होते होंगे तो साल में उस हिसाब से करीब 24 बार होते होंगे। लेकिन आप ध्यान से देखिए, पलट के देखें तो लोग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस बनाते हैं। वो कहते हैं हमारे पिताजी गुस्सैल थे, है ना। वो कहते हैं हमारी माँ जो है वो बहुत प्यार करती थी। अब माँ प्यार करती थी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दिन भर तो नहीं प्यार कर सकते बच्चों को, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस हैं। आप जब देखते हैं तो आप कहते हैं हमारे पिताजी जो हैं वो गुस्सैल थे, हमारी माँ जो है उनको, अब उनका तो हमेशा सर ही दुखता रहता था। अब दीदी जो हैं वो बड़ी सैड थी, जो भैया था वो तो कभी घर पे रहता ही नहीं था। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि भैया कभी घर पे नहीं रहता था। Yes. लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस हैं, और ये जिंदगी भर पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह जो है वो ट्रीट होती है। चूंकि मेरे पिताजी गुस्सैल थे इसलिए मैं भी हूं, है ना, ऐसा कहते हैं लोग। या लोग कहते हैं चूंकि जो है वो बचपन से ही हमारी मम्मी ने जो है हम पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए जो है हम आज ये सब नहीं कर पाए। अब आप ध्यान से देखें तो ऐसे इम्पॉसिबल है कि आपकी मम्मी ने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया हो, है ना। लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस हैं। इसलिए पेरेंट्स को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि अर्ली चाइल्डहुड में जो रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस हैं उस बच्चे के जहन में जाती हुई, उनको बहुत क्लियरली और बहुत डिस्क्रीटली मॉडरेट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप उनको ऐसी इमेजेस दे दें, रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस, जो उनके लिए गलत That- पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस क्रिएट कर yeah. रहे हैं जिंदगी भर के लिए। दूसरा, ये तो Yes. हुई रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव स्टेटमेंट्स। अब अगर आप देखें तो आप ये कहते हैं दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अब एक 4 साल के बच्चे के सामने अगर आप ये कहते हैं दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेटमेंट है, एंड ही और शी विल कैरी इट एज अ बेस फिलोसफी ऑफ लाइफ, For life. एंड दैट टू आपको पता नहीं कैसे। अब इमेजिन कीजिए आपने अगर ये सोच लिया कि यू नो दुनिया में जो है वो सब पैसों का होता है, ठीक है, और सक्षम भी सब साथ होते हैं, है ना। इस तरह की लाइनें जो हम कहते हैं ना, अब ये जो लाइनें हैं ये सारी रिप्रेजेंटेटिव स्टेटमेंट्स हैं। छोटी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम बैठे हुए हैं, आप, मैं किसी को ये कह दूं छोटे बच्चे को कि पंजाबीज तो मस्त मौला होते हैं, और ब्राह्मण्स जो हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, और जो बिजनेस कम्युनिटी होती है वो तो बड़ी स्ट्रीट स्मार्ट होती है, और जो साउथ इंडियंस होते हैं वो तो बड़े लर्नेड होते हैं, और मैं कहूँ कि भाई जो गुजरातीज होते हैं वो तो बड़े जो है वो क्लेवर होते हैं। अब ये जो लाइनें मैं कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं लाइनें ऐसे ही कह रहा हूँ, नहीं, ये लाइनें जो मैं कह रहा हूँ वो सब उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव स्टेटमेंट्स हैं Yes. जिंदगी भर के लिए, है ना। और पहला अगर रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस थी, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव स्टेटमेंट्स हैं, तो तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव लेबल्स। क्या होता है, हम लोग बचपन में जो बच्चे होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव लेबल्स नहीं दिया करें, जैसे ये तो हमेशा ही रोता रहता है ना, ये तो शुरू से ही थोड़ा सेंसिटिव है, देखिए इसका तो पेट जो है वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, अरे ये तो क्या है, बहुत मूडी है, अरे साहब अब इसका तो क्या बताऊं, ये तो शुरू से ही जो है वो कभी लोगों में ढल ही नहीं पाता, अरे ये तो शुरू से ही बड़ा चंट है। ये लाइनें क्या हैं, ये लाइनें वो रिप्रेजेंटेटिव लेबल्स हैं जो हम बच्चों को दे रहे हैं। तो आप मुझे Yes. एक बात बताइए, आपने जो रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस दिए हैं, आपने जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेटमेंट्स उनको दिए हैं, और आपने जो उनको रिप्रेजेंटेटिव लेबल्स दिए हैं, Label. ये कैसे कोई बच्चा अपने आप से छुड़ा सके? क्यों? क्योंकि
जब आप आटा गूंद रहे होते हैं तब आपने जो उसमें डाल दिया उसे आप पराठों से निकालेंगे कैसे? So how beautiful is that and so true. When I मैं earliest की टीचर हूँ, तो कभी मैं स्कूल वापस जाती हूँ, आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, तो उसी स्कूल में तो कभी रहना नहीं हुआ, बट कभी कभी मैं जैसे वापस जाती हूँ, किसी को मिलती हूँ, और उस छोटे बच्चे को अब 10 12 15, आई बीन वर्किंग फॉर 30 years, तो बच्चे भी बड़े हो गए, तो मैं सरप्राइजिंगली उनकी शादियों पे भी ऐसा स्टेटमेंट सुनती हूँ. सो आई टेल द अर्ली देखिए आप क्या आयरनी है, मतलब वो शादी की हो रही है उसकी तब तक उस बात ने पीछा नहीं छोड़ा है. स्टेटमेंट. हाँ, मतलब आई रिमेम्बर सीइंग दिस चाइल्ड बीइंग कॉल्ड फॉर द वेडिंग, एंड बड़ी मस्ती से वो बच्चा बैठ के कुछ कर रहा था. सो द पीपल सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड सेड, देखा, शुरू से ऐसा है. एंड आई सेड, माय गॉड, यू नो दिस गाय इज गेटिंग मैरिड टुमारो. एग्जैक्टली. फेरे लेने वाला है बच्चा. एंड यू नो, एज अ प्री स्कूल टीचर, आई ऑलवेज टोल्ड एवरीबडी, स्टेटमेंट्स मत दीजिए, बच्चों को उसी वक्त करेक्ट कर दीजिए. बिल्कुल सही बात. Tell him you're a good or a bad boy. Say what you have done is better done like this. एक्सीलेंट पॉइंट. इनफैक्ट उनके उनके बिहेवियर और उनकी हाँ, पर्सनालिटीज में फर्क हाँ, करना बेहद जरूरी है. हाँ, एंड हम लोगों को एज अर्लियर्स पेरेंट्स एंड टीचर्स फर्क करना बहुत जरूरी है. आई एम अ स्ट्रांग बिलीवर ऑफ दैट. प्लस आप जो बोलते हैं, मैं ये चीज भी आपसे जरूर बात करना चाहूंगी. बच्चों को गुस्से में करेक्ट ना करें तो बेहतर, क्योंकि आप वो सब स्टेटमेंट्स, लेबल्स और वो सब दे देंगे जो देना नहीं चाहिए बच्चों को. So I loved what you had said, that don't make negative experiences become like a lasting image in their life. Let it just pass, you know, let them just be. And I thought that is one thing which I thought we could actually talk about, saying that, you know, don't let negative events become negative experiences. So this has really stayed with me. इवेंट तो हो गया, अब आपने उसको कैसे बच्चे को समझना सिखाया, हाउ to make them respond to, you know, carry it forward. So if you could just talk to us about that. सुनिए जी, मुझे मुझे लाइन ऑफ कोर्स, ये मेरे पिछले सेशन जहां पे आपने इसे सुना था और जी, मुझे बहुत खुशी जी, है कि आपको वो लाइन याद है अभी तक, और मुझे लाइन बहुत जी, पसंद है कि जी, डू नॉट लेट नेगेटिव इवेंट्स बिकम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस. absolutely. उसका रीजन है क्योंकि एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस इज व्हेन एन इवेंट इज इंटरप्रेटेड, इन्फर्ड एंड इंक्ड, है ना. मैं इसे 3 आईज मानता हूं कि भाई व्हेन यू हैव इंटरप्रेटेड एन इवेंट, यू हैव इन्फर्ड समथिंग फ्रॉम इट एंड यू हैव इंक्ड इट. अब इंक्ड का यहाँ मतलब है डॉक्यूमेंट करना. अब बचपन में तो डॉक्यूमेंट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हर चीज जो है वो पत्थर में लिखा रही है. तो जो पत्थर में लिखा रही है वो तो वैसे भी नहीं हटनी है. तो आप जो है वो ये 3 चीजें जब किसी इवेंट के साथ करते हैं तब वो एक्सपीरियंस बनता है. छोटा सा एग्जांपल लो, मान लीजिए माँ बाप एक दूसरे से लड़ लिए. अब ठीक है, नेचुरल लड़ेंगी, और जैसा कि मैं पिछले सेशन में भी आपको याद होगा मैं कह रहा था कि लोग कहते हैं कि माँ बाप को अपने बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए. तो मैं कहता हूँ फिर किसके बच्चों के सामने लड़ना चाहिए? मतलब अपने बच्चों के सामने लड़ेंगे ना, कितना बुरा लगेगा. इमेजिन कीजिए कि माँ बाप को लड़ना हो और फिर वो अपने बच्चों को हटाएं और किसी दूसरे बच्चे के सामने लड़ें. दिस डजंट मेक सेंस. Yeah, and they will see. Yeah, they will see. और बच्चे बच्चे अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखते हैं तो उसमें कुछ बहुत गलत नहीं है. ऑफ कोर्स, मतलब दैट डजंट हैव टू बी यू नो अब्यूजिंग और Yeah, of course, like an yes, of सो वो course. जिस तरह से, अब जैसे माँ बाप लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद उन्होंने कुछ कह दिया और फाइनली अब जब लड़ाई हो गई है तब तक बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है. बच्चे को तो ये इवेंट मिला है, अब आपने उसे इंटरप्रेट कैसे किया? अब आप मान लीजिए आप साथ में बैठे और आपने कहा कि बेटा देखिए ये गुस्से में जो मैंने मम्मी को कहा वो क्या मुझे कहना चाहिए था. अब वो बच्चा कहेगा कि आप ही बताइए क्योंकि यू नो मैं अगर कुछ गलत कह दिया तो गुस्सा शायद मेरी तरफ डायरेक्ट हो जाएगा. आप कहें बेटा मैंने जो अभी कहा ना वो मुझे नहीं कहना चाहिए. और शायद मम्मी ने इसे इसलिए झेल लिया क्योंकि बरसों से जो हमारा रिश्ता है उसमें मेरी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार और यकीन का इन्वेस्टमेंट रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद मुझे माफी मांगनी चाहिए. और अगर इमेजिन किया उस तरफ से जो है वो आपकी वाइफ है, वो बच्चे को कहती है कि हाँ बेटा हम लोग लड़े, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एक दूसरे को नहीं चाहते, और इसका ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम तुम्हें नहीं चाहते, है ना. सो प्लीज मेक श्योर कि तुम्हारे पापा जो है ही हैड अ बैड डे टुडे, बट आई थिंक ऑल गुड पीपल हैव बैड डे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना. How beautiful is that? अब आप जब इस तरह की बात कहते हो तो बच्चे को लगता है ओ अच्छा, मतलब लोग लड़ते हैं पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो दूसरे से नफरत करते हैं. Correct. That's an important point. अब इमेजिन कीजिए मैं लड़ लिया और लड़ने के बाद जो है मैंने उसे एंड कैसे किया. मैंने अगर उसे एंड जैसे किया है उस पर फर्क पड़ेगा. जैसे अब मान लीजिए किसी की डेथ हुई, है ना. अब
डेथ तो होना ही है जिंदगी में, ऐसा तो नहीं कि हर इंसान हमेशा के लिए। अब अगर डेथ होती है तो आप उस बच्चे को उस डेथ को कैसे समझाएंगे, वो उसके लिए एक्सपीरियंस बनेगा। डेथ तो इवेंट है। इमेजिन कीजिए आप बैठे और आपने कहा कि बेटा देखो, ये जो आपको सामने दादाजी दिख रहे हैं, नाना जी दिख रहे हैं, या जो हमारे कजिन ताऊ जी हैं जिनकी डेथ हुई है वो जो सामने है, बेटा ये जो बॉडी है, ये बॉडी हम सब के लिए क्यों प्योर है? हम सब लोग देखो, तुम ध्यान से, हम सब लोग क्यों उसकी पूजा कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बॉडी में जो सोल थी ना, उस सोल ने हमें कितनी सारी चीजें दी। तो ये बॉडी के साथ हमारा आखिरी एक्सपीरियंस है। तो वी वांट टू मेक श्योर कि ये बॉडी जाए उसके पहले उस बॉडी के साथ हम सब लोग जो हैं वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स, आखिरी मोमेंट्स जो हैं, उनको बहुत पायस और प्योर बनाए। और बेटा अब ये कहाँ जा रही है बॉडी? देखो 5 तत्वों से बनती है बॉडी, अब उन्हीं 5 तत्वों में वापस विलीन हो जाएगी। अब 5 तत्वों में विलीन होगी तो उसके पहले हमारे साथ तो आखिरी बार है ना, इसलिए आओ सामने इनके और आके उस बॉडी के अंदर जो सोल थी उसको इस बॉडी के बहाने याद करो एंड थैंक हिम फॉर एवरीथिंग दैट ही डिड फॉर यू। नाउ जस्ट इमेजिन दिस विल स्टे विद दिस बॉय और गर्ल फॉर एवर। यस यस, इमेजिन कीजिए उसकी जिंदगी का ये एक्सपीरियंस वो कभी नहीं भूल सकता। सो माय पॉइंट इज, इन्हें हम इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस के बीच का डिफरेंस समझते हैं। मान लीजिए आपका एक आज जो है वो आपने, आपका बिजनेस था और आपका बिजनेस बंद हो रहा है, आपका बिजनेस बंद हो रहा है और आप जो है वो आके अपने बच्चे के साथ बैठते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत टेंशन में हूँ यार, मेरा ना बिजनेस बंद हो रहा है। अब वो कहे कि आपका बिजनेस बंद हो रहा है पापा, आप कैसे चलेगा आप अपना काम धाम, आप फीस भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे? तो आप कहेंगे बेटा उसकी चिंता मत करो, मेरे ख्याल में मेरे पिताजी ने मुझे सेविंग्स सिखाई थी, वो शायद आज काम आ रही है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ये जो बिजनेस बंद हो रहा है उस टाइम पता है मुझे कैसे महसूस हो रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कई गलतियां जो मैं आज सोच पा रहा हूं मैंने की थी, वो अगर उस वक्त सोच पाता तो शायद बिजनेस बंद नहीं होता। तो तुम ही सोचो कितनी सारी चीजें जो पीछे देखने पर गलतियां लगती हैं, अगर वो पहले ही स्पॉट कर दिया जाए तो वो गलतियां नहीं होंगी। नाउ लुक एट द वे यू आर इंटरप्रेटिंग दैट एक्सपीरियंस इवेंट, है ना, एंड मेकिंग इट एन एक्सपीरियंस। मुझे लगता है हम में से अधिकतर पेरेंट्स जो हैं, वी डू नॉट कन्वर्ट इवेंट्स इनटू एक्सपीरियंसेस। एक्चुअली वी डोंट थिंक लाइक दिस। अभी Exactly. जैसे आपने बात करी है, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ अस विल एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, बिकॉज अनलेस we understand that, my god, these are two different things. Exactly. So yes, I think it is. मतलब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल अभी यही दे रहा था ना कि आप मान लीजिए एग्जांपल ने कि आपने अपने घर में देखा और अपने घर में जो है वो आपके दो भाई हैं, उनकी आपस में लड़ाई होगी। अब आपस में लड़ाई होगी और लोगों ने बातचीत करना बंद कर दी एक दूसरे से और घर में आना जाना बंद कर दिया। अब आपका बच्चे को तो नहीं समझ में आ रहा ना, 3-4 साल का है वो, अभी तक तो वो देखता था कि भाई ये दो लोग आपस में बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, अब तो नहीं कर रहे। तो आप उन्हें क्या कहेंगे? आप कहेंगे देखो बेटा, ये जो दो घर के लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे का घर आना जाना नहीं कर रहे हैं, इसको तुम एक तरह का ऐसा मान लो कि जो इंटरवल होता है ना बेटा दो रिश्तों के बीच में, वो जैसे तुम्हारे यहाँ इंटरवल होता है ना दो पार्ट्स के बीच में, उस तरह का इंटरवल है। It will be all right. और बेटा इंटरवल के बाद क्या स्कूल खत्म हो जाता है? कहते नहीं सर, इंटरवल के बाद तो स्कूल खत्म नहीं होता है। कहना बेटा वैसे रिश्ते भी खत्म नहीं होते इंटरवल के बाद, मत चिंता करो। और चूंकि क्या है, ये लोग थोड़ा थोड़ा वक्त अलग अलग ले रहे हैं, जो हुआ है उसको अभी फिलहाल समेटने में। तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत मानना कि ये रिश्ता अलग हो गया है। बेटा कई बार लोग जो है वो थोड़ी देर के लिए दूर होते हैं पर अलग नहीं हो जाते। ये दूर हुए हैं, अलग नहीं हुए। नाउ इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेल देम। Yeah, just today, my daughter, 28, we had a little argument and she walked out. Then I complained and I said that, why did you walk out? She said, I was taking time out. And I said, yeah, Brilliant. you're just taking time out, yes. Exactly. We would have sat here, we would have fought. हमारे कहते हैं ना, आपने स्पोर्ट्स में देखा है ना सोनिया जी, वो टाइम आउट का जो सिंबल होता है ना, कई बार वो रिश्तों में भी लगता है और आप सदा साहब कहते हो टाइम आउट, है ना, हम लोग वापस आ जाएंगे। I think how beautiful, Sanjay, I think the way आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स आज सुन रही हैं, ये जरूर इम्पैक्ट करेगा। जैसे आपने मेरे एक इवेंट था जिसमें आपने बोला था, लेकिन मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बन गया। Exactly. So it actually became a whole, and we attend so many events. They don't become experiences in our life. Yes. और मैं यहाँ पे एक और चीज सुनिए जी, सॉरी आपको इंटरवीन कर रहा हूँ जी लेकिन मुझे लगा अचानक से जहन में आई है तो मैं इसे शेयर करूँ कि बच्चे को जो तकलीफ देता है ना, वो देता है एक अनप्रोसेस्ड इवेंट या फिर रॉन्गली प्रोसेस्ड इवेंट। अब क्या होता है कि आप उसे एक अनप्रोसेस्ड इवेंट दे देना तो उसका दिमाग उसको लेकर कुछ भी एसिमिलेशन नहीं कर पाता। और अगर आप उसे रॉन्गली प्रोसेस्ड, मान लीजिए उसी के ऊपर प्रोसेसिंग छोड़ दिया आपने,
तो मुझे बताइए ना, आप एक 5 साल के बच्चे के ऊपर एक इतने बड़े मैग्नीट्यूड ऑफ इवेंट की प्रोसेसिंग छोड़ देंगे, तो पता नहीं कौन सी होगी ना। देखिए, हम आपको मतलब हमको लगता है हम फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन सिर्फ जो है वो किताबों में देते हैं, जिंदगी में फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस होते हैं भाई। अब जब जिंदगी में फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस होते हैं और अगर मैंने उन्हें उसके पहले लेसन पढ़ाया ही नहीं है, तो उस ब्लैंक को वो किससे फिल करेंगे? ऑफ कोर्स किसी भी ऐसी चीज से जो उन्हें पता ही नहीं है। लाइफ स्किल्स जो आजकल यू नो इन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम, I think the whole there were two distinct contrasting kind of reactions we saw. One were people who said चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लेते, इसको ऐसे कर लेते, and there were other people, in fact even the webinars, the programs, you know, we were making it sound like the last, I mean, like everything was like made so much. Yes, it was a difficult time, but could we have made it simpler for the children? Yes. Have made it a little more, you know, it's okay, it's going to pass. तो मुझे कोई कह रहा था कि जब ये बच्चे वापस आएंगे तो पूरा एकेडमिक लॉस हो जाएगा। तो मैं एक बड़ी अच्छी सी पोएम गाती थी उनको कि खिड़की खिड़की प्यारी खिड़की कितना कुछ दिखलाती है, बाहर खड़ा हो जाता हूँ तो ताजी हवा भी मुझे अंदर आती है, कभी सूरज दिखता है, कभी चांद नजर आता है, कभी तितली उड़ती नजर आती, कभी दूध वाला दिखता है, कभी सब्जी वाला दिखता है, कभी गार्डनर मुझे खोदता हुआ नजर आता है। तो कहाँ बच्चा खोएगा? द चाइल्ड इज इन अ वेरी सेफ ग्राउंड। आई एम नॉट सेइंग कि गैप में फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके हिसाब से ये जो 8, 10, 12 महीने हैं बच्चों की जिंदगी के, छोटे बच्चों की, what kind of an impact do you feel will happen to the children social emotionally, because peers are missing? अब तो बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, and do you feel learning gap बहुत बड़ा हो जाएगा? सुनिए जी, पहले तो आपने जो ये अभी खिड़की वाली पोएम सुनाई, आई एम अमेज्ड। मुझे नहीं पता ये आपने लिखी है या आपने कहीं सुनी, बिकॉज आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। फाइनली अगर आप उस खिड़की से बाहर देख रहे थे तो जिंदगी में लर्निंग तो वैसे भी बंद नहीं हो रही थी, अनडाउटेडली। और शायद उस पार से भी आपको बहुत से लोग जो है वो सिखा रहे थे, और अंदर से भी। अब यू नो, आई थिंक दैट्स, यू नो, माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू ऑन दैट। इट्स ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि इस इन 8-10 महीनों का क्या फर्क होगा, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये 8-10 महीनों में एक चीज तो ये तय होगी, वो ये कि इन 8-10 महीनों में जो मैं आपको कह रहा था ना, पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस जो क्रिएट होने थे वो सबसे स्ट्रांगली क्रिएट हो गए। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। इन महीनों में जिन माओं ने, जिन मदर्स ने या जिन फादर्स ने, कोई जरूरी नहीं कि एक ही जेंडर हो, कोई जिन भी मदर्स ने और फादर्स ने किचन में जाते वक्त बहुत ज्यादा दुखी हुए थे, और जिन्होंने ये कहा था कि अरे यार ये काम फिर से करना पड़ रहा है, ये वही का वही काम करना है यार, ये मेड क्यों नहीं आ रही है, हम देखो सबके सब पागल हो गए, जिन्होंने ये कहा था, अब उनको ये बात याद रखनी पड़ेगी, दे विल हैव टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू रीराइट दिस मेमोरी। एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर आपने इन महीनों में, याद रखिएगा, इन महीनों में बच्चे पूरी तरह से आपको देख रहे थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप उनके आसपास सबसे ज्यादा थे। अब अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि ध्यान से देखिए, पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस क्रिएट करने में अगर नेगेटिव हुआ तो ये अनफॉर्चुनेटली, अगर पॉजिटिव हुआ तो फॉर्चुनेटली। अब अगर आपने इन दिनों अपने काम की तरफ बहुत ही, जिसको हम कहते हैं ना, नेगेटिव सेंटिमेंट रेडिएट किया था, तो याद रखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस बनने वाले हैं। अगर आप इन दिनों आपस में बहुत लड़े थे, जैसे एग्जांपल लेता हूं, ये वो पहला वक्त था जब घर के सारे लोग जो हैं वो फैमिली में एक साथ रहते थे, एक साथ, एब्सोल्युटली। अब क्या है, दुनिया में ये सोचना कि सब एक साथ रहेंगे तो खुशी आती है, ये नोशन अलग है और रियलिटी अलग होती है। क्योंकि जब लोग साथ रहते हैं तो टकराते भी हैं, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आप जितने लोग होंगे वो आपस में कहीं ना कहीं तो टकराएंगे ना, उसमें गलत क्या है। तो अब इस वक्त मान लीजिए मैं हूं एज अ फादर, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ मेरी फादर बैठे हुए हैं और यहाँ मेरी बेटी बैठी हुई है, यानी मेरी बेटी के ग्रैंडफादर और उसके फादर दोनों साथ में बैठे हुए हैं। अब इमेजिन कीजिए, मेरे ग्रैंडफादर, मतलब उसके ग्रैंडफादर ने, मेरे पापा ने कुछ कहा, और इधर जो है वो मेरी बेटी ने जो है वो कुछ कहा। अब मुझे किसी एक का साइड लेना है, क्योंकि मेरे पापा ने उसको कुछ बहुत अजीब सा कह दिया है कि यार तुम जो है वो आजकल पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं कर रखा है, लगातार जो है उससे यहाँ बैठ के मटर कश्ती करते हो, टीवी चालू रखते हो। अब मेरी बेटी ने कहा कि ऐसा कैसे हो रहा है, आप ही पूरे टाइम टीवी चालू रखते हैं। अब मैं बीच में हूं। Now the way I'll handle this situation will create a template for my kid for a lifetime. I hope, I mean, I'm able to, you know, explain the seriousness of it.
Yes. Because the Yes. way I'll handle with this situation will actually Yes. create a template. ये केस स्टडी का एनैक्टमेंट हो रहा है, सीधे सीधे कहूं तो। इमेजिन कीजिए इस टाइम पर मैं टीवी देखते देखते, यहाँ पापा ने कुछ कहा, ये बात मेरी बेटी ने सुना, उन्होंने पलट के मेरी बेटी ने कुछ कहा, अब मैं यहाँ पर बेटी को डांट देता हूँ और कहता हूँ कि अपनी बड़ों से मुंह नहीं लड़ाते, लीजिए, अब ये टेम्पलेट हमेशा के लिए सेट हो गया। या मैंने अगर अपने पापा को कह दिया कि पापा आप क्यों टोकते रहते हो उसको, ये भी टेम्पलेट सेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता था, पर ये मैंने 6-8 महीने में जो भी किया होगा, मैं नहीं कह रहा हूं क्या सही था और क्या गलत था, आपने जो भी किया था, अब वो टेम्पलेट बना हुआ है। अब उस टेम्पलेट को आप यकीन मानिए हटा के बताइए, इट इज रिटन इन स्टोन। तो ये 6-8 महीने जब जिंदगी में लोग आसपास बहुत ज्यादा थे ना, तब हमें पता नहीं चला, पर पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस ह्यूजली क्रिएट हुए। इसीलिए अगर मान लीजिए मैं इन्हीं महीनों में मैं सुबह लेट उठता था और रात को जो है वो बहुत लेट सोता था, और सुबह जो है वो काम करते करते जो है बीच बीच में जो है वो कुछ और अपने काम के बारे में बुराई करता था, मेरे बच्चे मेरे आसपास बैठे हुए इस बात को लगातार एब्सॉर्ब कर रहे थे और पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस क्रिएट कर रहे थे। नाउ व्हाई आई सेड दिस सोनिया जी इज बिकॉज अभी जो भी मैंने ये सब किया होगा ना पिछले 6-8 महीने में, हम में से कईयों ने गलतियां की होंगी, हम में से कई लोगों ने गलत बिहेवियर का रोल मॉडलिंग की होगी, पर चूंकि अब फैग एंड है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम निकल ही रहे हैं इससे, तो याद रखिए इवेंट को एक्सपीरियंस बनाने का अब ये हमारे पास आखिरी मौका है। परफेक्ट। क्योंकि बच्चे अभी भी, मेरे को नहीं लगता कि 1-1.5 महीना और जाएंगे स्कूल, जो छोटे बच्चे नहीं, अब ये 1-1.5 महीनों में प्लीज मेक श्योर दैट यू समहाउ इंटरप्रेट, infer and ink that event into a positive experience. Yes, and Simri, that many times when I'm taking, parent orientations, my only claim to fame to take parent orientations is that I've been a preschool teacher for 30 years. अब 30 सालों में takes a lot. I tell you, it takes a lot to do that. तो मैं किसी को कह रही थी ऐसे जी, 30 सालों में कभी दुपट्टे का कोना साफ नहीं रहा है मेरा, कभी हाथों में मेरे नेल आर्ट नहीं रहा, कभी आंखों में मेरे आंसू आ जाते हैं, मैं सबके सामने रो देती हूँ बच्चों को, क्योंकि मैं प्री स्कूल टीचर हूँ, ऐसे ही रहती हूँ। और पेरेंट्स मुझे चैलेंज ना करिए, क्योंकि अगर मैंने आपको आपकी कहानी सुना दी तो समझ में नहीं आएगा किधर जाना है आपको। तो इसलिए बचपन की जो बच्चे होते हैं, they come to us with just their hearts open. Yes. And I am a very strong believer in the fact that we need to mold these years. There are times when during the whole, this is also something because they're all adults over here, our most personal times, we've seen it reflected in our schools. Yes. Dangerous. And these same children, when they grow up, we are talking about the society today, we are talking about things that are going wrong. Well, they are starting that young. Please understand, बच्चे इन चीजों को, इन आहटों को महसूस करते हैं. So be very careful. And I think the one reason why I thought of requesting you to talk to the early, the children, young parents, is that so much of the television, the digital, the phone, while it's wonderful because we are sitting on a digital platform, but I'm seeing restlessness, I'm seeing anger, I'm seeing the parent not. So what is this going to do to the child? We want the child to do online learning. We want the child to be, involved with little things. But long term, this addiction, is it going to be, what is it going to be like? I mean, I won't even use, a word like addiction or not. But I would like your perspective that this whole phase, how do you view it socially, emotionally? मैं थोड़ी सी कन्वेंशनल हूँ सनी जी इन चीजों में. आज भी मैं जब कई बार जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी खुद की नजर आजकल फोन पे चली जाती है, which I was not like that. So what is it going to do to all of us, on a social front and on emotional? मतलब खैर, अब मेरा और आपका इंटरेक्शन रहा है तो आप जानती हैं मैं व्हाट्सएप पे कभी नहीं रहा, और मैं फोन जो है वो रात को ऑफ कर देता हूँ और सुबह जब मुझे दिन स्टार्ट करना पड़ता है तभी शुरू करता हूँ. अब उसके बीच में अगर मुझे किसी ने जो है वो बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ ने भी फोन लगाया होगा तो आई वांट टू मिस दैट. I'll repeat this. I want to miss that. है ना? My husband did an online session and he gave a 30-60-90 formula. जी. सुबह उठने के बाद 30 मिनट फोन नहीं लगाना है, आप उठाना है आपने,
और रात को सोने से पहले 60 मिनट नहीं। एक्सीलेंट पॉइंट, हो तो सबसे अच्छा। एक्सीलेंट पॉइंट। और इसका मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताता हूँ, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे कभी नहीं हूँ तो आज भी मैं जोक्स पे बहुत जल्दी हंसता हूँ, क्योंकि मेरा जो लाफ्टर का थ्रेशोल्ड है वो अभी भी बरकरार है, जो नॉर्मल होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं फोन ऑफ करने का आदी हूँ। अब लोग मुझसे कहते हैं कि तुम दुनिया से जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तो मैंने कहा यार दुनिया से डिस्कनेक्ट होना मुझे चलेगा, खुद से हो गया डिस्कनेक्ट किसी दिन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि पर्सनली हम सब लोगों को डिजिटल डिटॉक्स थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। एक तो मेरा पर्सनली मानना है कि आप जिस तरह से टेक्नोलॉजी को ट्रीट करते हैं वैसे बच्चा भी करने लग जाता है। जैसे ये यहाँ पर मैं आपके जो आपने बात कही थी उस सवाल को और क्लियरली वो करता हूँ, एस्टैब्लिश करता हूँ कि यहाँ पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो मैंने टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते को लेकर क्रिएट किया था, वही पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो मेरे बच्चे के लिए है, नो डाउट अबाउट दैट। जैसे अभी सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, मेरी बेटी ने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उसने कहा कि मैं कुछ काम के बारे में बात कर रहा था एंड शी सेड कि आप तो उस टाइम बहुत चिढ़ रहे थे जब काम कर रहे थे। तो मैंने कहा बेटा मैं इसलिए चिढ़ रहा था क्योंकि टेक्नोलॉजिकली बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे और मुझे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन मेरी जिंदगी में पसंद नहीं आता। So the moment I said it, after that I could see that she was actually looking at phone कुछ करने के लिए, because हम हम सब लोग जो है वो अगर फोन दूर रख लेंगे तो भी वो उतना ही ऑब्जेक्ट ऑफ अपील बन जाएगा। तो हमें फोन को तो वहीं रखना है, बस इसका ख्याल रखना है कि बच्चा उसके पास ना जाए। अगर आपने फोन हटा लिया वहां से तो यकीन मानिए आपके बच्चे के दिमाग में फोन और ज्यादा जिंदा हो गया। याद रखिए ये, मतलब मैं ये अक्सर जो है वो लोगों को रिश्तों के दौरान कहता हूँ कि एक बड़ा खूबसूरत शेर है, इतनी निस्बत है तेरे ख्याल से मुझको, तू भी आए तो खलल लगता है। यानी हमें लोगों के ख्याल से इतना प्यार हो जाता है कि अगर वो भी आए ना हमारी उस ख्याल के दौरान तो हमको वो भी इंटरप्शन लगता है। उसी तरह से थिंग्स और पीपल दे ऑलवेज ग्रो इन योर माइंड इन देयर एब्सेंस। प्लीज समझिए सभी लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, दे ग्रो इन आवर माइंड इन आवर एब्सेंस, इन देयर एब्सेंस। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अधिकतर आजकल के रिश्ते इसलिए प्रॉब्लम में आते हैं बिकॉज पीपल डोंट मिस ईच अदर। आई मीन मैं ब्लॉग लिखा था बहुत पहले, उस ब्लॉग का टाइटल था आई मिस मिसिंग यू। लाइन थी आई मिस मिसिंग यू, बिकॉज यू वांट टू मिस समबडी, तभी तो रिश्ता जो है वो गहरा होगा। अब मैं इस बात को वापस उसी बात पे लाऊं जहां से शुरू कर रहा था कि अगर मैंने वो फोन हटा के कहीं रख दिया तो मेरा बच्चा उसको मिस करने लग जाएगा, और जहां मेरा बच्चा उसको मिस करने लग गया तो फोन की इंपॉर्टेंस उसके जहन में बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट ये है कि फोन कहीं भी रखा हो लेकिन आप फोन को दूर मत कीजिए। आप बच्चे के अंदर ये यकीन लेके आइए कि फोन वहां रहे, उसके बावजूद वो फोन तक न जाए। अब हुआ ये कि जब मैंने ऐसा कहा टेक्नोलॉजी को लेकर, सो शी ऑल्सो, आई डोंट नो कैसे, लेकिन शी ऑल्सो looked a bit reluctant to look at phone for at least next 10 to 12 minutes. And I realized that my saying that had such an immediate impact on her perception of the immediately available technology in front of her. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो हैं वो, देखिए पहले तो मैं हम सबको ये बात कह दूं, टेक्नोलॉजी जो है वो टिटिलेट करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें बहुत ही इंस्टेंट फीडबैक देती है, और जिंदगी में कोई भी चीज जो इंस्टेंट फीडबैक देती हो ना और अनप्रिडिक्टेबल देती हो, कभी अच्छा कभी बुरा, कब लिंक, कब लाइक आएगा, कब मैसेज आएगा, ये सब अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी और इमीडिएसी, ये दो चीजों को आप जोड़ लीजिए और बनता है एडिक्शन। इस बात को फिर से कहूंगा, ट्विटर पे अगर आप हैं और अचानक से एक लाइक आता है तो ये क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, और ये इमीडिएट है। मैंने अभी डाला था एक स्टेटमेंट और अभी लाइक आ गया। बस जहां आपने अनप्रिडिक्टेबिलिटी और साथ में इमीडिएट फीडबैक ये दोनों जोड़ दिए ना, तो ये चीज बहुत एडिक्टिव होने लग जाती है। अब ये क्या है, चाहे वो फोन हो, चाहे वो हमारा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो टेलीविजन हो, ये सारी चीजें क्या है, ये दोनों चीजें देती हैं, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी और साथ ही साथ इमीडिएट फीडबैक। और इसका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आप तो जानती हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना, तो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है, इसको छुड़वाना बेहद जरूरी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कह रही थी ना, आप कन्वेंशनल हैं, मेरा मानना है कन्वेंशनल अप्रोच का मतलब क्या था। कन्वेंशनल अप्रोच का मतलब ये था कि सुख जो है, सुख के लिए इंतजार भी सुख देता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। इस लाइन को फिर से कहूंगा मैं, सुख के लिए इंतजार भी सुख देता है। सुख को पाना सुखी होना नहीं होता है, सुख का इंतजार भी सुख होना होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो अगर मैं ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स के टर्म्स में बात करूं कि मेरा काम पूरा ब्रेन के टर्म्स में है, तो डोपामीन जो है वो डोपामीन कब सीक्रेट होता है? डोपामीन तब सीक्रेट नहीं होता है when you get something. It gets secreted when you are about to get something, when you are expecting something.
इसीलिए गिफ्ट खोलने के दौरान का सुख और गिफ्ट को देखने का सुख कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। How क्योंकि beautiful, gift को- Sandeep ji, this is so beautifully said. And like I said, जुड़ रहा है ये हमारे हैप्टीट्यूड से. Exactly, आपने अभी जो योगा So वाला एग्जाम्पल beautiful. दिया ना, Yes, तो so मेरा ही beautiful. मानना है कि वो इंतजार का जो सुख है ना, वो इंतजार का सुख बच्चों को देना बेहद जरूरी है। बच्चों Yeah. को ये कहें कि अब एग्जाम्पल लें, मान लीजिए आपने कौन बनेगा करोड़पति देखना शुरू किया, एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए कि वो आता है 9 बजे, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मुझे तो याद नहीं क्योंकि मैंने देखा नहीं अभी तक, पर अगर 9 बजे आता है, कि कब आता है वो मैंने शुरुआत में अभी तक नहीं देखा, तो अब 9 बजे आता है मान लो, और आप कहें चलो कौन बनेगा करोड़पति 9 बजे आएगा। नाउ अगर आप ये 8 बजे से कह रहे हैं या आप 6 बजे से कह रहे हैं, तो यकीन मानिए वो भी अपने आप में एक डोपामीन का कैंडिडेट बन रहा है। आपको याद नहीं है, हम वो लोग हैं जिन्होंने चित्रहार जो है वो सिर्फ हफ्ते में एक बार आता था, बाद में 2 बार आने लग गया। जब तक एस कुमार प्रायोजित करता था एक ही बार आता था। अब रंगोली जो है वो हफ्ते में एक ही बार आएगी, और हम पूरे हफ्ते इंतजार करते थे उसका। कैसे कर लेते थे, और कैसे एक एक दो दिन पहले हमें पता होता था कि बुधवार आने वाला है। वाई? बिकॉज मैं ये बात लोगों को समझा के थक गया सोनिया जी, सुख के इंतजार में सुख पाने से ज्यादा सुख आता है। And today also the children don't मतलब हम उनको कुछ चीज मिस नहीं करने देते, उनको हम बोर नहीं होने देते, हम उनको we just let you be. वो नहीं, एक बहुत छोटी सी बच्ची आई थी हमारे शो पे, तो I asked her, so during the Independence Day, so I asked her that what is the most important skill, Ria, do you feel that? She said not to do anything. Beautifully said. मतलब 21-year-old child, and I asked her, how is it that you do so much? She said, because many times I do nothing. Exactly. Do जी, nothing. आपने जो अभी इतनी इंपॉर्टेंट बात कही, आपको याद होगा पहले भी शायद हमने डिस्कस किया था उस सेशन में कि इवन इसको मैं पर्सनल लाइफ में तो ठीक है, मैं प्रोफेशनल लाइफ में बताता हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे लगता है हम सबको हमारे बच्चों के करियर को लेकर जो चिंतित होते हैं उनको ध्यान से समझना चाहिए, दैट excellence in any domain can only be attained when you are willing to go through extended periods of boredom. Absolutely. इस लाइन को फिर से कहूंगा मैं, excellence in any domain can only be attained when you are willing to go through extended periods of boredom. जो बोर्डम से गुजरने को तैयार होता है वो एक्सेलेंस तक पहुंचता है। तो आपने जो कहा ना, बोर्डम तो इन एनी केस इज द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ हेल्दी ब्रेन, और इसलिए बोर होना जरूरी है, हमें इंतजार तो करना बच्चों को, हाँ, तो थोड़ा सा बच्चों को छोड़िए ना, जब बच्चा बैठ के उल्टा पुल्टा होके छत या रैंडम सा कुछ काम कर रहा है, डोंट शेक अप दैट चाइल्ड एंड से तुम तो कुछ नहीं कर रहे, अब तुम कोडिंग करो, अब तुम राइटिंग करो, अब तुम रीडिंग करो, अब तो आई एम नॉट सेइंग कि इसमें से कुछ भी बुरा है, कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन सारा टाइम बच्चों को बिजी रखना, दिस इज बिकम लाइक एन एडिक्शन टू पेरेंट्स. So I keep telling them कि इतना कुछ है करने को घर में, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, Exactly. There's enough to do, because you are calculating the waking hours back to back to back to back to back. अब बीच में boredom, thinking gaps, and जो आप कह रहे थे assimilation gaps नहीं आ रहे हैं. इनफैक्ट सुनिए जी, आपने जो कहा ना, मैं उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं कि मुझे आप आज पूछेंगे अगर, तो मुझे पपीता किसने सिखाया? मुझे पपीता चढ़ना किसी ने सिखाया नहीं। दादाजी जो है वो हाट जाते थे, अब दादाजी हाट जाते थे तो मेरी मम्मी से पूछते थे क्या कर रहा है ये, तो मम्मी कहती थी कुछ भी नहीं कर रहा, तो बोले चल मेरे साथ। अब आप मैं हाट जा रहा हूँ, अब हाट में अगर वो पपीता छाट रहे हैं तो मैं तो देख रहा हूँ ना। फाइनली मुझे लगता है ये बात मैं आज बाबा को कभी नहीं समझा पाया ढंग से, शायद ये मेरा फेलियर है कई मामलों में, दैट एज अ टीचर शायद, कि बच्चों को सिखाने का बेस्ट तरीका होता है उनको अपने साथ रखना। प्लीज मेक श्योर यू कीप देम विथ योरसेल्फ। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आज मुझे बैंक का काम किसने सिखाया मुझे, तो मुझे लगता है पापा बैंक जा रहे होते तो उन्होंने शायद मुझे कहते होते क्या कर रहे हैं, चल अब चल ये फिल कर तब तक। अब यू सी इट हैपनिंग। मैं तो लोगों को यहाँ तक कहता हूँ, अगर आप अपने छोटे भाई से लड़ने जा रहे हो ना, तो लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि मैं चाचा से लड़ने जा रहा हूँ, इसको घर पे ही रखना। नहीं, मैं तो कहता हूँ अगर लड़ने जा रहे हो तो साथ में ले जाओ। अरे उसे पता तो चले कि लड़ के कैसे नॉर्मल हुआ जाता है। मतलब how can you deprive kids of any ethical experience? I'm not saying positive or negative, please understand. It's not positive or negative. Any ethical experience से आप बच्चे को कैसे महरूम कर सकते हैं? आप नहीं रख सकते उसको। तो आपको, मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, तो मैं आज भी जो है वो अगर मैं इंस्टा पे जो है वो बहुत रात को अगर जो है वो कोई पोस्ट डाल रहा होता हूँ, तो मुझे एक सेंस ऑफ गिल्ट आता है। ये सेंस ऑफ गिल्ट मुझे क्यों आता है? मुझे सेंस ऑफ गिल्ट इसलिए आता है क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ कि यार मेरे आसपास कोई है जो मुझे देख रहा है। पर ये फीलिंग कि कोई देखकर सीख रहा है,
इसके लिए आप उसे अपने साथ रखिए और सिखाइए मत, सिर्फ रखिए ना साथ. People don't हाउ do. ब्यूटीफुल. और ये शायद ये सबसे अच्छा वक्त है. भी मेरी बेटी अब की शादी हो गई है, शी इज नाउ 28. तो सडनली आई हस्बैंड फौज में थे, तो सारा टाइम बेटी साथ रहती थी. जहां पे भी जाते थे एक सिक्योरिटी होती थी कि मुझे उसको साथ रखना है. आज जब मैंने एक छोटा सा उसके लिए लाइन लिखा था कि बिटिया मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि कुछ वक्त बाद आईने में तुम में ही मैं नजर आऊंगी. Oh, this is beautiful. This is beautiful. कि मेरी जैसे ही तुम बन जाओगी, This is beautiful. जैसे ही बन जाओगी, This is beautiful. मेरे को अपने अंदर ही पाओगी. तो आज मैं वो रिफ्लेक्शन अपनी बिटिया में दिख रही है. क्या बात है. हाँ, मुझे सिखाना ही नहीं पड़ा उसको. मुझे कुछ कुछ छोटे छोटे रिश्ते, जिंदगी, मुझे एक्चुअली आई एम सीइंग माय रिफ्लेक्शन इन दिस ग्रोन चाइल्ड. तो मैं कभी लोगों को कहती हूँ कि जी मेरी जिंदगी का जो सार है वो मेरा इस बच्ची में जब खड़ी होती है वो, क्योंकि उसका बचपन में जो मैंने किया, जो मैंने एक्सपीरियंसेस दिए, जो मैंने स्टेटमेंट्स दी, जो मैंने, वो आज मेरे सामने खड़ी है. Exactly. In fact, I can see that journey, क्योंकि आपने उससे अपने साथ रहने की प्रिविलेज दी. अच्छा, मैं जानता हूं कि मी टाइम होना चाहिए, मैं जानता हूं कि वी टाइम होना चाहिए, लेकिन मी और वी टाइम होने के अलावा भी कोई ऐसा वक्त भी होना चाहिए कि आप खाना बना रहे हो और वो सिर्फ किचन में खड़ी हो या खड़ा हो. मैं नहीं कह रहा हूं खड़ी हो, खड़ा हो भी जरूरी है उतना ही. तो मेरा मानना है कि आप जब खाना बना रहे हो और वो किचन में सिर्फ खड़ा हो. मैं तो याद करता हूँ ना, मैं अगर अपना बचपन याद करूं तो खंडवा में जो है वो यहाँ पर मेरी ताई जी खाना बना रही है, मेरी मम्मी खाना बना रही है, और वहां एक छोटा स्टूल था और मैं स्टूल में बैठ के टक 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 करता रहता था घंटों, और मैं सिर्फ उनके आसपास रहता था. And I think that was a beautiful experience because I was able to see their interaction with each other, their interaction with the work, my dadi's interaction with them. Now, point is, when you are not asking him or her to do anything and still being around, then that kid has that, a rare privilege to observe without being into a pressure of observing, which is big. How beautiful. और ये अब और आपने कहा ना, ये तो आप मुझे टच कर गई ये बात बहुत ज्यादा लाइन की. आप जैसे आपकी बच्ची जो है वो आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगी. मुझे निदा फाजली याद आ गया. निदा फाजली जो बहुत अजीम शायर थे, उन्होंने अपनी फादर की डेथ पे लिखा था, बड़ी सी नज्म है. वो नज्म बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं कहूंगा. तो उस नज्म की शुरुआत ऐसी है कि तुम इस तरह से मर नहीं सकते, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर उड़ाई थी जिसने वो झूठा था. तुम्हारे मौत की सच्ची खबर उड़ाई थी जिसने वो झूठा था, वो तुम नहीं थे. शाख से एक सूखा पत्ता गिर के टूटा था. उसमें लास्ट लाइनें जो है पता है क्या है? वो लास्ट लाइनें ऐसी हैं सोनिया जी, वो हैं कि मैं तुम्हारे कब्र में दफन हूं, तुम मेरे जिस्म में जिंदा हो, कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना. ब्यूटीफुल. क्या खूबसूरत लाइन है कि मैं तुम्हारी कब्र में दफन हूं, तुम मेरे जिस्म में जिंदा हो, कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना. तो मुझे लगता है कि हम फाइनली अपने बच्चों में वही पास ऑन करते हैं जो हम हैं. जी, आई सो एग्री विद यू संदीप जी. एंड आई थिंक आपके साथ बात करने के लिए हमें ज्यादा वक्त चाहिए, बट इट्स ऑलमोस्ट टाइम. ओह माय गॉड, इट्स ऑलमोस्ट ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी टाइम. बहुत लोग मुझे लिखते हैं कि आप इसको 1 घंटे का कर दीजिए. आई सेड नहीं, थोड़ा सा एक आप में उत्सुकता होनी चाहिए कुछ अगला सुनने के लिए. मैं तो उल्टा इसको ऐसे कहता हूँ सोनिया जी कि मेहमान को तब चले जाना चाहिए जब मेजबान अभी भी चाहता हो वो रुके. But हम we are so grateful for this conversation. मैंने ना बहुत सारे questions लिखे थे एक पेज भर के, लेकिन मुझे आपसे बात करके इतना अच्छा लगा कि मैंने उस तरफ नजर ही नहीं घुमाई. So thank you so much. And मुझे social emotional development statement मुझे नहीं पता, लेकिन आपके जैसे लोग अगर इन चीजों को फैलाते हैं, I'm sure they are very beautiful learnings for everybody who interacts with you. You make every event an experience. Thank you so much, Sonia ji. Thank you so much. And for all the audience, we're going to get another beautiful speaker. It's going to be outdoor experiences and learning. And I think जो हम एक speaker से सीख रहे हैं, we are hoping to take it forward with each one. And like I say, I don't script my sessions too well, but I'd have no regrets. Thank you. Thank you, Sanjeev ji. A real honor to have you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Square, panda.